ड्रॉ करो। This is sum number 9. Ninth sum. Draw first. Ninth sum you can do it on 4 or 5 sides. See, one side you make bills receivable, bills payable, debtor, creditor. Second side cash book trading. Third side P&L खाली बनाए तो भी चलेगा। लास्ट साइड पे बैलेंस शीट्स दो। तो 4 साइड्स पे आराम से ड्रॉ करो। चार साइड में बना लो। क्या
हाँ हाँ ये लास्ट में yeah चलो नाइट सम एक साइड पे हाँ बिहार थोड़ा देखा चलेगा चलो बिहार ड्रॉ क्या हाँ हो इसमें चलता है उसमें कन्वर्जन नेटवर्क इसमें यू कैन राइट नाइन्थ दो लोग एब्सेंट है कौन जियांश पारेगौर विजय आया आशना चलो see look at sum number 9 है कुछ नहीं है it's not a difficult sum it's a simple sum only it is lengthy है थोड़ा सा नहीं राजीव सर तुम्हारे राजीव सर सर आपके अलावा भी दूसरों को मौका देना चाहिए। आज अभी मेरा नहीं था राजीव सर के वजह से मेरे को लेना पड़ा सर क्यों सर तुम मेरे मत पाएंगे रोहन सर को आते आते शाम हो जाएगी चलो सुनो अभी एकदम फोकस रखना दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सम ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ये सम अगर आपको आ गया खुद से मतलब पूरा चैप्टर का ज्ञान प्राप्त हो गया समझ लो ओके मोस्ट डिफिकल्ट सम ऑफ सिंगल एंट्री मॉड्यूल सम ओके रिस्पेक्ट इज्जत से करना सब नंबर 9 पढ़ो अभी ध्यान से पेज 287 288 289 तीन पेज पे Mr. Anup runs a wholesale business wherein पहला ही लाइन पे दिया है पढ़ो all purchases and sales are made on credit मिला he furnishes the following closing balances so one is for 31st March 21 and one is for 31st March 22 so I think 31st March 21 is opening 31st March 22 is closing is this clear अभी आराम से करेंगे स्लोली अपन साथ में पूरा सम मेरे साथ रहना आगे पीछे भागोगे ना बीच में कुछ भी लटक गए तो वापस घूमना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वेरी मच पेशेंस इज रिक्वायर्ड ओके डोंट गो फॉर एक्सटीनेस ओके और आराम से करेंगे तो इतना स्लो भी नहीं होने वाला है इतना फास्ट भी नहीं होने वाला आराम से करेंगे साथ में रहना सब लोग ठीक है चलो गाय मत करना और एकदम हल्लो हल्लो भी मत लिखना सबसे पहला डेटर्स ओके
ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? डेटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी 70,000 and by balance CD 92,000 बराबर है। सेकेंड इफेक्ट मैंने बोला हर एक चीज का दो इफेक्ट है, इसमें सब कुछ हम ही बना रहे हैं। डेटर है, क्रेडिटर, नॉर्मली वी हैव मेक डेटर, क्रेडिटर एंड कैश बुक, but here you have BR and BP also. So I told you, remember, BR, BP, debtor, creditor, cash book, trading P&L, balance sheet, opening and closing. Everything BR only. Okay, what is the second effect of this opening balance? Last year asset. 70,000. And closing वाला किधर जाएगा? Closing वाला किधर जाएगा? Current year asset 92,000. Is this clear? Bila? Opening goes to last year asset, closing goes to current year asset. ठीक है? आता रहेगा तो भी घाई मत करो. Bills receivable, opening and closing. So BR is what? Asset or liability? Asset. BR is an asset, right? So BR account में टू बैलेंस की बाय बैलेंस, टू बैलेंस BD 15,000 and बाय बैलेंस CD 6,000. टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD. Where do you put opening balance of BR? Second effect. Last year asset 15,000 and closing BR will go to current year asset 6,000. Opening BR goes to last year asset, closing BR goes to current year asset. Okay? Bills payable is an asset or a liability? Liability. So क्या होगा? टू बैलेंस की बाय बैलेंस BD 12,000 and टू बैलेंस CD 14,000. I'll explain all the points. भाई मत करना. बाय बैलेंस BD का टू बैलेंस BD हो जाएगा. What is the second effect of opening bills payable? Last year's liability में जाएगा 12,000 and closing I think will go to current year's liability 14,000. Is that right? Got it? And then you have creditors. Creditors are also liability. So two balance की buy balance. हाँ? Buy balance BD 40,000. Buy balance BD 40,000. And two balance CD 56,000. Again, opening creditors will go to last year's liability 40,000 and closing creditors will go to current year's liability, that is 56,000. Inventory मतलब stock. Where do you put stock? Opening stock किधर जाएगा आपका? Opening stock will go to where? Trading debit. बराबर है? So to opening stock that will go to trading debit 1,10,000. Is that right? And closing stock will go to trading credit, that is 1,90,000. What is the second effect of opening stock? Last year asset and closing stock, that is current year asset.
Then bank and cash. So in the cash book, you have two columns. Cash bank balance अलग अलग दिया है. So to balance BD, बैंक का है ओपनिंग 90, कैश का है ओपनिंग 5200 और क्लोजिंग बैलेंस that is by balance CD. Bank is 87, cash is 5300. Second effect इधर जाएगा. Opening cash bank will go to last year asset. Cash is 5200 and bank is सर आपने उल्टा लेके आया कैश और बैंक 90,000. सीडी वाला 87 is bank and 5300 is cash. And closing cash will be 5300 and closing bank will be 87. These are the opening balances and postings in both the balance sheets. Alright? अब स्टेप बाय स्टेप आराम से जाना है. एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ना है और हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट देते जाना. बराबर है? Deposited into bank after payment of shop expenses of 600 a month, salary of 9200 per month, and personal expenses of 1400 per month, 760 to 750. Read that statement again. Deposited into bank after payment of shop expenses, salary, personal expenses, 760 to 750. What is this? What is that 760 to 750? That is the cash deposited in the bank. Okay. But that is the amount you get after paying all these expenses. So पहले क्या करेंगे हम लोग? Expenses. And all these expenses are paid by cash. Okay, क्योंकि इधर cash और bank दोनों है. So be alert when to write cash, when to write bank. So what is the entry for paying shop expenses? Shop expense to cash. Shop expense to cash. Because this is the cash you are getting. आपको माइनस नहीं करना है. This is the subtract करके आया हुआ cash. आपको खाली एंट्री करनी है. ओके? तो पहला शॉप एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? शॉप एक्सपेंस टू कैश. ये तीनों कैश से जा रहे हैं. तो कैश में क्या लिखेंगे हम लोग? बाय शॉप एक्सपेंसेस. बाय शॉप एक्सपेंसेस. बराबर है? Is that right? कितना आएगा? 7200. What is the second effect of shop expense? To shop expense, P&L debit, 7200 per month है ना. फिर सैलरी का भी वही है, सैलरी टू कैश. तो बाय सैलरी कितना होगा? 110400. And what is the second effect of salary? What is the second effect of salary? P&L debit 110400. बराबर है. फिर पर्सनल एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? ड्रॉइंग्स हो गया. ड्रॉइंग्स 1400 a month into 12 I think is 16800. And what is the second effect of drawing? कैपिटल में से माइनस. बराबर है. तो तीनों का एक इफेक्ट एक्सपेंस और P&L डेबिट, दूसरे का पर्सनल है तो ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल. अब ये 760 टू 750 क्या है? ये कॉन्ट्रा है. व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस 760 टू 750? बैंक टू कैश. सो हाउ विल यू पोस्ट इट? बैंक में टू कैश. बैंक में टू कैश और कैश में बाय बैंक. बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक. शुड आई सबट्रैक्ट दीज आइटम्स फ्रॉम 760 टू 750? स्टेटमेंट का मीनिंग समझा?
ये पैसा अपने सारे खर्चे काटने के बाद डाला है बैंक में. दिस इज द अमाउंट एक्चुअली डिपॉजिट. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. तो बैंक टू कैश कॉन्ट्रा कर दिया हमने. उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 1,21,000. व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक? कैश टू बैंक. अगेन अ कॉन्ट्रा. सो कैश में टू बैंक, कैश में टू बैंक और बैंक में बाय कैश. कैश में टू बैंक और बैंक में बाय कैश. Is it clear? Simple entries are simple. Just be alert. Silly mistake now. Lengthy है थोड़ा सा. Cash payment to supplier 77,200 for supplies and 25,000 for furniture. पहले तो बताओ cash payment to supplier for purchase. What is the entry? Creditor to cash. Sorry. Creditors to cash. Sorry. तो creditors में to cash 77,200. Creditors to cash. Cash में by creditors. Cash payment 77,200. बराबर है. Creditors में to cash, cash में by creditors. And 25,000 for furniture. What is the entry for furniture? फर्नीचर टू कैश डालेगी. फर्नीचर टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू कैश. वापस उसका अलग क्रेडिटर बनाने की जरूरत नहीं है. गॉट इट? दीज क्रेडिटर्स आर फॉर गुड्स. ये पूरा गुड्स का. तो फर्नीचर टू क्रेडिटर वापस क्रेडिटर बनाने की जरूरत नहीं है. सीधा फर्नीचर टू कैश कर सकते हो आप डायरेक्ट. ओके. तो फर्नीचर टू कैश. तो क्या करेंगे? कैश में बाय फर्नीचर कितना? 25,000. What is the second effect of furniture? कौन सा एसेट? ओपनिंग की क्लोजिंग. क्लोजिंग मतलब ये 25,000 का आपने कब खरीदा है? करंट. फर्नीचर और नॉर्मल क्रेडिटर समझ में आया? भेलपुरी मत बनाना दोनों का. मतलब देख के ऐसा लगता है कि क्रेडिटर को ही पे किया, लेकिन ये क्रेडिटर गुड्स का है, वो क्रेडिटर फर्नीचर का है. दोनों सेम नहीं है. गॉट इट? इज दिस क्लियर? सो फर्नीचर अलग and goods का अलग. Sorry. Then next, checks collected from customers but dishonored. तो अपने को दोनों करना है क्योंकि ये एडजस्टमेंट नहीं है. चेक्स कलेक्ट भी करना है और डिसऑनर भी करना है. ओके. व्हाट इज द एंट्री फॉर चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर? ये साल के बीच के ट्रांजैक्शन है सारे का. बैंक टू डेटर, बैंक टू कस्टमर. ये तो आता है ना कैसा बड़ा कस्टमर घटा. बैंक टू डेटर. तो बैंक में टू डेटर, बैंक में टू डेटर 5,700 और डेटर्स में बाय बैंक 5,700. बैंक में टू कस्टमर. ये चेक आने की एंट्री है. अब यही चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया. तो क्या होगी? डेटर टू बैंक. सो डेटर में टू बैंक. वापस इसको उल्टा कर दो और बैंक में बाय डेटर 5,700. सर क्यों बैंक कॉलम? तो चेक है, चेक है तो बैंक कॉलम. हाँ क्या? बैंक टू डेटर और डेटर में टू बैंक. ओके. वो एंडोर्स चेक था. एंडोर्स चेक डिसऑनर वो कैश में रहता है. नॉर्मल चेक्स आर ऑलवेज बैंक. बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर. व्हाट इज बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर? बीआर एक्सेप्टेंस की एंट्री. बीआर टू डेटर. बीआर टू डेटर. सर मैंने बीओई ऑप्शन में छोड़ा. एज अ सीए स्टूडेंट आप बीओई ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते. ठीक है, इधर भी आ सकता है. सो बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर. व्हाट इज द एंट्री? बीआर टू डेटर. सो पता है ना एक्सेप्टेंस. बीआर बड़ा डेटर घटा. सो बीआर में टू डेटर, बीआर में टू डेटर 40,000 और डेटर्स में बाय बीआर 40,000. इज दिस क्लियर? बीआर में टू डेटर, डेटर में बाय बीआर. Okay, bills endorsed. What is the entry for bills endorsed?
Creditor to BR, endorsee to BR, endorsee मतलब creditor. So creditors to BR, so creditors में to BR, value is 10,000. Creditors में to BR और BR में by creditors 10,000. Creditors में to BR, BR में by creditors. Then bills discounted 20,000, discount is 7. What is the entry for BR discounted? Bank discounting charges to BR. Asset बढ़ा, discount expense बढ़ा और BR घटा. बराबर है? BR बेच दिया बैंक को. So split it. Ledger में हमेशा split करके करते हैं. Bank to BR, discount to BR. So bank to BR. So bank में लिखेंगे to BR, but कितना? See the entry is like this, bank discount to BR. Hello. 19, 250, 750 and 20,000. Hope you got this. When you split it, you get what? Bank to BR and discount to BR. So bank to BR is how much? 19, 250. Wait, bank में to BR, तो BR में by bank. High मत करो. Bank में to BR, BR में by bank. 19, 250. And डिस्काउंट टू BR. तो डिस्काउंट में टू BR, वो तो नहीं बना है डिस्काउंट अकाउंट. BR में बाय डिस्काउंट लिख दो. बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 750. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस डिस्काउंट? वेरी गुड. शोज टू P&L expense discounting charges 750. This is the practical transaction of a business from start to end. Okay, opening balance, during the year transaction, then final accounts. पूरा साल. Only thing we are not making is trial balance. But वो बोलने ही वाला double effect या तो खाली होगा ही. Then bills matured and duly collected. What is bills matured and duly collected? Bank to BR या cash to BR. तो bills के सारे transaction are through bank. ने CA में बोला भी याद है bills of exchange में बैंक. तो कुछ नहीं किया, बिल्स के सारे ट्रांजैक्शंस आर थ्रू बैंक. 12th में क्या चूज करो? इधर बैंक. सीए में सारे बिल्स के ट्रांजैक्शन बैंक. सो एंट्री क्या होगी? बिल्स कलेक्टेड बैंक टू BR. बिल्स ऑनर्ड है. बिल्स कलेक्टेड ड्यूली मैच्योर्ड मतलब ऑनर्ड. BR ऑनर्ड करते थे ना, रिटेन BR ऑनर्ड. बैंक टू BR. सो बैंक टू BR, बैंक में टू BR कितना है? 16,000. बैंक में टू BR, BR में बाय बैंक 16,000. बैंक में टू BR, BR में बाय बैंक 16,000. ओके. बिल्स एक्सेप्टेड. ये क्या है बिल्स? अभी तो क्या बिल्स एक्सेप्टेड? अभी हमने एक्सेप्ट, वो डेटर ने किया था. ये BP एक्सेप्टेड है. व्हाट इज द एंट्री फॉर BP एक्सेप्टेड? क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल. क्रेडिटर घटा, BP बढ़ा. सो क्रेडिटर्स में आएगा टू बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स में आएगा टू बिल्स पेबल 24,000 और बिल्स पेबल में आएगा बाय क्रेडिटर्स 24,000. गॉट इट? क्रेडिटर्स टू BP. Creditors to BP. Then pay to suppliers by check 3,20,000. Sorry, pay to suppliers by check. What is the entry? Suppliers to bank. Supplier मतलब creditors. So creditors में to bank 3,20,000 और बैंक में by creditors 3,20,000. बराबर. क्रेडिटर्स में टू बैंक, बैंक में बाय क्रेडिटर्स. ओके, रीड द नेक्स्ट वन. Receive 20,000 on maturity of one LIC policy of the proprietor by check. लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम आया, इंश्योरेंस नहीं क्लेम आया, प्रोप्राइटर का क्लेम आया बिजनेस में. बैंक टू कैपिटल, दिस इज कैपिटल इंट्रोड्यूस. यस, यू गॉट इट. सो क्यों पर्सनल वाला पैसा आ रहा है बिजनेस में और चेक से आ रहा है. LIC इज पर्सनल.
निकाला तो ड्रॉइंग्स, लेके आया तो कैपिटल, समझ आया? क्लिक हुआ, LIC क्लेम। घर से बिजनेस में लाया, सो बैंक टू कैपिटल, सो बैंक में क्या लिखें? टू कैपिटल, बैंक में लिखेंगे टू कैपिटल 20,000, राइट? बैंक में लिखेंगे टू कैपिटल 20, एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एडिशनल कैपिटल, ओके, 20,000, एडिशनल कैपिटल 20,000 ऐड कर दो। Then rent received 14,000 by check for the premises owned by the proprietor. ये भी कैपिटल ही है, घर का premises का रेंट बिजनेस में डाला, वापस एंट्री क्या बनेगी? टू कैपिटल। बिजनेस premises का होता तो क्या एंट्री करते? बैंक टू रेंट दिया है। नो, बिजनेस का बिजनेस ओन करता है, इट इज नॉट ओन बाय प्रोप्राइटर। हाँ, आपको एंटिटी नहीं, बट इधर दिया होगा बिजनेस प्रीमाइसेस या ओनर्स प्रीमाइसेस। पर्सनल प्रीमाइसेस का ऐसा स्पेसिफाई किया तो इट इज घर से आया। बिजनेस प्रीमाइसेस या नॉर्मल रेंट रिसीव, पर्सनल वर्ड नहीं दिया मतलब बिजनेस, तो बैंक टू रेंट। कुछ नहीं दिया तो सब बिजनेस का ही, पर्सनल वर्ड दिया तो ही पर्सनल। तो बैंक में टू कैपिटल, एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? हाँ, ऐड टू कैपिटल। मिला? समझा? दोनों कैपिटल ही था क्योंकि घर से आ रहा है। नेक्स्ट, a building was purchased on 30th November 21 for opening a branch for 3,50,000 and some expenses were incurred on this building, details of which are not maintained. मतलब ठीक है, बिल्डिंग खरीदी है और उसके ऊपर कुछ खर्चा भी हुआ है। बिल्डिंग 3.5 लाख की है, खर्चा कितना अपने को मालूम? बिल्डिंग की एंट्री कर दो। व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल्डिंग? बैंक की कैश, कुछ नहीं दिया है तो बैंक, ओके, बैंक, बिल्डिंग टू बैंक, सो इधर बाय बिल्डिंग, Actually, it is not 3,50,000. It is 3,50,000 plus something. तो ये पेंसिल से लिख लो फिगर। By building 3,50,000 plus something. ये plus something क्या एक्सपेंसेस अपने को मालूम? कब मालूम पड़ेगा? एंड पड़ेगा, आएगा। तो फिलहाल ये 3,50,000 नहीं है, it is 3,50,000 plus something. ओके, इनर कॉलम थोड़ी होना है, यहाँ पे कैश बुक है। ओके, बैंक कॉलम 3,50,000 प्लस लिखो, कुछ भी पेंसिल से लिख के रखो, ठीक है? अभी व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग? व्हिच एसेट? लास्ट ईयर टू करंट ईयर। करंट ईयर इट इज 3,50,000। यहाँ पे आप इनर कॉलम में लिख दो, इसमें कुछ चार्जेस वार्जेस आएगा आपका, दिया है ना, इंसिडेंटल चार्जेस हुआ है, वो चार्जेस अपने को मालूम नहीं है, ठीक है? मालूम नहीं है, छोड़ दो, आएगा, पता चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश 18,700, ड्यू 2,200। हाँ, मतलब पे किया 18,700 और ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है 22। पहले तो पे करने की एंट्री बोलो। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन टू कैश, तो इधर क्या आएगा? बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, कैश और बैंक, कैश दिया है, कैश कितना? 18,700। 18,700 इधर है ना, हमने दो चीजों के लिए बैंक यूज किया है, बिल्स और बिल्डिंग। क्योंकि बिल्स के बारे में कुछ नहीं दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा ट्रांजैक्शन इज बैंक। Building because it's a big asset. It's a small cheese, you can take cash. Building is a big asset, so don't take cash. You take bank. ये इसके बारे में क्वेश्चन में दिया नहीं है कुछ, दिया? Still we assume it is bank. Is it clear? Don't assume cash. सुना? बाकी सबका हिंट है। बिल्स हमेशा बैंक, सीए में बिल्स हमेशा बैंक। बिल्डिंग का पता नहीं था कैश है कि बैंक, still we took bank, big asset.
ठीक है, तो थोड़ा वैसे हिसाब से सोचना है. नाउ electricity and telephone bill paid by cash. What is the entry? Electricity and telephone to cash. What is the second effect of this? P&L debit 8700, but inner column. Why inner column? And outstanding electricity and telephone 2200. And outstanding electricity and telephone. And what is the second effect of outstanding electricity and telephone? Liability. बराबर है? मिला? कैश में पे किया 2200 ड्यू पर. अदर ट्रांजैक्शन, ये खाली ऐसे ही पोपले के जैसा अदर सब ट्रांजैक्शन है. Claim against the firm for damage 1,55,000 is under legal dispute. Legal expenses 17,000. The firm anticipates a defeat in the suit. Legal expense, ये contingent liability click हुआ. Damages होके रखा है, केस चल रहा है. But ये कंटिंजेंट तब तक होता है जब तक अपने को अंदाजा नहीं है अपने फेवर में आएगा कि अपने अगेंस्ट, तब तक कंटिंजेंट है. आगे पॉइंट दिया, सॉरी क्या दिया? द फर्म एंटिसिपेट्स अ डिफीट इन द सूट. द मोमेंट यू फील है तुम्हारा हारने का तय है, तुम हारने वाले हो, मतलब पैसा जाने वाला, देन शो दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी इन द बुक्स. शो दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी एज, वो पूरा कॉम्पेंसेशन और लीगल एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी बन चुका. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें कब पे करना है. पे नहीं किया है, बट द लायबिलिटी हैज बिकम एक्चुअल. क्यों एक्चुअल? डिफीट. अगर हमें पता ही नहीं होता, वी डोंट नो द आउटकम, ऐसा दिया है, वी डोंट नो द आउटकम, देन इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब बुक्स में रिकॉर्ड होने वाला नहीं, वो नोट के जैसा दिखेगा नीचे. ये हो गया एक्चुअल लायबिलिटी. क्यों एक्चुअल लायबिलिटी हो गया? क्योंकि एंटिसिपेट्स अ डिफीट. तो सोचो क्या करेंगे? कॉम्पेंसेशन और लीगल एक्सपेंस, ये लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करना है. हाँ बट हाँ इफेक्ट क्या होगा? P&L और लायबिलिटी. P&L क्या मतलब? रिजर्व का. बेसिकली क्या है, अपना प्रॉफिट घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है. प्रॉफिट किधर से घटेगा? P&L घटेगा, इंटरनल घटेगा, एक्सटर्नल बढ़ेगा. एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, कॉम्पेंसेशन टू वर्कर, रिवाइल्ड डेबिट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड क्लेम फॉर डैमेजेस, रिवाइल्ड डेबिट लायबिलिटी. व्हाट वाज रिवाइल्ड? P&L डेबिट एंड लायबिलिटी. सेम थिंग वी आर डूइंग. सो क्या होगा? इधर आ जाएगा, इधर आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज. आउटस्टैंडिंग क्लेम कितना है? 1,50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस कितना है? लीगल एक्सपेंस तो पे किया ना सब पूरा देना बाकी है. पेड थोड़ी दिया है कुछ, पूरा ही आउटस्टैंडिंग है. क्लेम फॉर डैमेज अंडर लीगल डिस्प्यूट, लीगल एक्सपेंस सब आउटस्टैंडिंग है, पूरा पेड नहीं दिया है कुछ, पूरा ही देने का बाकी मिला. एंटायर अमाउंट इज पेएबल. What happened? क्या बोल क्या? One effect is P&L debit. You got it? Why P&L debit? Loss होने वाला है. Is this clear? दोनों. And what is the second effect? Outstanding claim and legal expense. Outstanding claim and legal expense 1,72,000. क्लेम और लीगल एक्सपेंस बोथ आर लायबिलिटी. लटकता होता, बाहर होता, अपने को पता नहीं होता क्या है, क्या सीन है, तो इट वुड हैव बीन कंटिंजेंट. द मोमेंट यू फाइंड अ डिफीट, कोई भी बाहर की लायबिलिटी बुक्स में आती है तो क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ता है. अब लायबिलिटी इधर बढ़ाओगे तो कुछ तो घटाना पड़ेगा ना. क्या घटाओगे? प्रॉफिट्स. अपना प्रॉफिट्स ही खा के जाता है, तो प्रॉफिट्स घटेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा. वैसे कोई भी एसेट एंटर होता है बुक्स में तो अपना प्रॉफिट बढ़ता है, तो एसेट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा. रिवाइल में कहते हैं ना, एसेट इंक्रीजेस, रिवाइल क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीजेस, रिवाइल डेबिट. व्हाट इज रिवाइल? प्रॉफिट्स. P&L एडजस्टमेंट. ओके,
Goods returned to supplier. What is the entry for goods returned to supplier? Creditor to purchase return. So creditor में to purchase return कितना? 4,200. What is the second effect of purchase return? Trading. Trading में to purchases less return 4,200. Goods returned to supplier. Creditor to purchase return. Got it? Goods returned by customer. हाँ 1,72,000 ना बराबर है ना 155, 165, 170 दोनों का ऐड किया अलग अलग भी लिखा सकते 172 155 प्लस 17,000 बराबर है ओके गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर बोले तो सेल्स रिटर्न टू डेटर सेल्स रिटर्न टू डेटर तो डेटर में बाय सेल्स रिटर्न कितना 1,200 है व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट हाँ जी बोलो बाय सेल्स लेस रिटर्न ट्रेडिंग क्रेडिट बराबर है सेल्स रिटर्न टू डेटर एक्सपेंस बढ़ा डेटर घटा सब 11th में किया है और 12th में भी हुई डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर व्हाट इज द एंट्री डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर घटा गेन बढ़ा क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिटर में टू डिस्काउंट रिसीव कितना कर लो अभी थोड़ा छोटा हैंडराइटिंग में मैनेज नीचे लिख दो पहले छोटे हैंडराइटिंग में क्रेडिटर में टू डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय लेकिन डिस्काउंट रिसीव तो नहीं है तो किधर डालेंगे हाँ P&L क्रेडिट बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 2700 मिला करेंगे वही तो बताना वही तो मैं क्यों करवाऊंगा इतना बड़ा नाउ ना ऐसा मतलब तुमको करने की जरूरत है बाकी सब तो ठीक है Then discount offered to the customers. बताओ what is discount offered to the customers? Discount allowed की entry क्या है? Discount allowed to debtors. Shut up. Discount allowed to debtors. तो debtors में क्या लिखे? By discount allowed कितना है? 2,400. And what is the second effect? P&L debit side to discount allowed 2,400 बराबर then the business is carried on a rental premises annual rent is 20,000 which is outstanding on your end outstanding मतलब पैसा देना बाकी है तो one effect is P&L debit and what is the second effect बोलो इधर liability 20,000 is liability so we have recorded all the outstanding rent hello समझे outstanding rent P&L debit or liability hope this is clear खत्म और कुछ है अभी one by one you need to shut down अभी शटिंग डाउन में सुनो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता बट एडवाइजेबल है कि पहले BRBP करोगे तो बेटर है ओके फर्स्ट यू स्टार्ट विद BRBP करते हैं क्लोज उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे सोचते हैं हम लोग क्या करना है ठीक है मेन थिंग इज क्लोजर ओनली तो गलत अकाउंट उठा लिया ना क्लोज करने के लिए तकलीफ हो जाएगा तो पहले BRBP से शुरुआत करनी है ठीक है इजी होएगा काम आपका अब देखो सबसे पहले लेट्स सी BP अकाउंट
बीपी अकाउंट में क्या डिफरेंस आ रहा है देखते हैं. दिस इज 36 minus 14 I think 22,000. एक गैस ये क्या होगा 22,000. ये क्या होगा. देखो इधर क्या है, बाय बैलेंस है, बाय क्रेडिटर है, टू बैलेंस है, पे ऑफ किया है, ऑनर किया होगा. व्हाट इज द एंट्री फॉर बीपी ऑनर्ड? बीपी टू बैंक. बीपी टू बैंक ये और ये तो होना ही चाहिए. जैसे मैंने बोला था डेटर में सेल और पेमेंट रिसीव, क्रेडिटर में परचेज और पेमेंट मेड, याद है 4. वैसे बीआर में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, एक्सेप्ट किया है तो ये क्या रहेगा पेमेंट. बीआर में क्या रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, एक्सेप्ट डेटर ने किया है तो ऑनर, ऑनर्ड एक्सेप्ट ये तो होना ही चाहिए बेसिक है. बाकी डिसऑनर, एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग वो सब सेकेंडरी. मेन कंपोनेंट्स बीआरबीपी में 4 होना चाहिए. समझा क्या क्या बोला? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एक्सेप्टेंस, पेमेंट. बीआरबीपी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एक्सेप्टेंस, पेमेंट, ये 4 कंपोनेंट तो होना ही. तो इधर एक्सेप्टेंस है लेकिन पेमेंट नहीं है. तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बीपी ऑनर्ड बीपी टू बैंक? सो बीपी टू बैंक क्या कैश बैंक. सो बीपी में टू बैंक, बैंक में बाय बीपी 22,000 बराबर से. बीपी बंद हो गया. अभी सर्च इन बीआर. See what are you getting in BR account? एक मिनट. कौन सा ये बाजू आ रहा है? इधर आ रहा है ना 3,000. This is 55. Please be quiet बेटा. ये क्रिटिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अभी इधर ही लोचा होता है. अब तक के एंट्रीज तो चिन्हित है. एंट्रीज वेर नॉट डिफिकल्ट. किसी को लगा कुछ एंट्री डिफिकल्ट है देख के बोल दो. अभी एंट्री वेर इजी. पोस्टिंग समझ में आया. अभी क्लोजर ही में है. पहला बीपी को बंद किया. बीआर में ये क्रेडिट में आ रहे हैं 3,000. सोचो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इतना एंट्रीज किया है, क्या हो सकता है? देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो है, एक्सेप्टेंस भी है, ये रहा बीआर टू डेटर, बीआर बड़ा डेटर घटा, ऑनर भी है, डिस्काउंटिंग भी हो गया है, रिटायरमेंट हो सकता है कैश टू बीआर. बट रिटायरमेंट के बाद एक और चीज होती है रीपेड, वो तो दिया नहीं है. एक नहीं ऐसा लॉस अज्यूम करना नहीं है. रिटायरमेंट भी हो सकता है बट रिटायरमेंट के साथ क्या होना चाहिए? डिस्काउंट होना चाहिए. डिस्काउंट का कोई इन्फो दिया नहीं है तो ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद इज डिसऑनर. और कुछ हो सकता है? सोचो. एंडोर्समेंट भी दिया है, डिस्काउंटिंग भी दिया है, पैसा आया हुआ भी मालूम है. दो ही पॉसिबल, या तो रिटायरमेंट हो सकता है या तो डिसऑनर. बराबर है. रिटायरमेंट या डिसऑनर. व्हाई इट कांट बी रिटायरमेंट? रिपीट नहीं. तो इट हैज टू बी व्हाट? डिसऑनर. सो व्हाट इज द एंट्री फॉर बीआर डिसऑनर? डेटर टू बीआर. डेटर बड़ा, बीआर घटा. तो बीआर में क्या आएगा? बाय डेटर, और डेटर में आएगा टू बीआर. इसलिए मैंने बोला अगर आप पहले डेटर उठा लेंगे ना सब गड़बड़ हो जाए. तो पहले बीआर भी बंद करो. हाँ, बैंक फॉर कलेक्शन हो सकता है कलेक्टेड बिल्स, बट अगेन दे नीड टू स्पेसिफाई बीएफसी के पास गया है कि नहीं. अगेन बीएफसी अकाउंट यू नीड टू मेक. तो बीएफसी का बैलेंस चला जाएगा. तो बेटर अजम्पशन इज दिस ऑल. ओके. बीएफसी का कलेक्शन तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा. बीएफसी अकाउंट, नया अकाउंट हो सकता है, वो भी हो सकता है. रिटायरमेंट भी हो सकता है, बीएफसी भी हो सकता है. बट बेटर assumption from the available info we can go for is this all. समझ में आया? तो पहले बीपी बंद किया. ये क्या था आपका? पेमेंट. ये था आपका डिसऑनर. बराबर. अब I could shut debtors, okay, but then okay, चलो पहले क्रेडिटर्स को क्लोज करते हैं, फिर डेटर्स पे जाते हैं. आपको अपना आइडिया आएगा. लेट्स शट क्रेडिटर्स. टेल मी टोटल क्या है? टोटल इज
टोटल 494 100 आया एंड डिफरेंस कितना है 454 100 क्या होगा बाय परचेज हो सकता है क्योंकि परचेज और पेमेंट दो मेन चीज है परचेज मिसिंग है तो परचेज का सेकेंड इफेक्ट आई थिंक जाएगा रेडिंग डेबिट 4 कितना 454 राइट 454 100 मिला 454 100 okay now try and shut debtor I think you are getting the difference on the debit side it has to be sales payment opening closing balance दिया है पैसा तो आ चुका है it has to be debtors right I mean sales right कितना है थोड़ा सा दिमाग लगाने का साला 454,100 का परचेज है तो कैन देयर बी अ सेल ऑफ 60 to 100 कुछ तो गड़बड़ है कैश सेल्स होना चाहिए हाँ अभी पहला रैंक पढ़ो सबका और all sales and purchase are on so मिले hold on leave it debtors को छोड़ो go to cash book okay this is how you have to think थोड़ा सा सोचेगा नहीं दिमाग में धर करके 60 to 600 ले तो हो जाएगा गोबर परचेज है तुम्हारा 4,54,000 का purchase is 4,54,000 how the hell can be sale 62,000 it's not possible so hold on whenever in doubt wait go to cash book पहले बैंक बंद करते हैं बैंक का देखो क्या साइड है बैंक के पास अपना एक हिंट है बैंक में क्या हिंट है मालूम है ये एक्सपेंसेस का देखो क्या आ रहा है टोटल पहले बताओ मुझे आई थिंक योर डेबिट शुड बी ग्रेटर वो कैश में खरीदा है वो डेटर है बैंक टोटल 927,700 आया माइनस द क्रेडिट ये 3.5 लाख भी कर लेना माइनस 1,09,000 ये 920 ये भी लेना 87 भी लेना सब ये बैलेंस भी लेना है भैया सबको 350 में माइनस करो कितना आया डिफरेंस 22,000 आ रहा है मतलब ये क्या होगा ये 22 वो जो बिल्डिंग एक्सपेंस मतलब ये बिल्डिंग एक्चुअली कितने का है 3,72,000 का है समझ आया कैसे debit minus credit we got 22 we had already written 3 lakhs so the building is not worth 3,50,000 it is worth 3,72,000 you got the difference debit minus credit 22 are those incidental expenses इसलिए मैंने बोला था पेंसिल से लिख के रखो अभी आप लिख सकते हो इरेज करके फुल 3,72,000 got it so what is the second effect ये बिल्डिंग में इधर add incidental expenses 22,000 so now they are 3,72,000 बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व है once again बीपी समझ आया बीपी में ये क्या हो सकता था और कुछ हो सकता था बीपी में सोचो was only one possibility BP लेकिन ये चार तो चाहिए bare minimum requirement to balance payment and acceptance okay then BR we were left with multiple choices it could have been retirement it could have been BFC it could have been dishonor it was the best alternative dishonor retirement में discount नहीं था BFC का separate account कुछ mention नहीं है got it hello then we went to creditor it had to be purchased anything else could have been possible over here hello purchase payment bare minimum अब साला परचेज 454 है तो सेल उतना कम हो नहीं सकता है तो वी वेंट टू कैश बुक पहले बैंक बंद किया ये तो पता ही था अपने को हिंट अब लेट्स शट डाउन कैश विच साइड ऑफ कैश व्हाट द टोटल ऑफ कैश 8 lakh
Total. I think your credits will be greater. 1, 10,23,350. 10,23,350 is the total minus the debits. 8,97,150. now थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पैसा आया है कि गया है? आया है, रिसीट है। तो कहाँ से आया होगा? सेल्स का आया होगा, बट कुड इट बी कैश से? जो ऊपर दिया है ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, सेल्स का ही है, बराबर सोचा आपने। कैपिटल हो चुका है, ड्राइंग्स हो चुका है, इट हैज टू बी सेल और परचेज, बट व्हिच से? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट से मतलब पहले माल बेचा, फिर डेटर से पैसा आया, तो ये क्या हुआ होगा? टू डेटर अकाउंट। अच्छा, कैश में टू डेटर, तो डेटर में बाय कैश 897,150। सर लेकिन ये कलेक्शन तो दिया था इधर बाय बैंक, वो कलेक्शन ही था, बट कलेक्शन इतना छोटा अमाउंट हो सकता था? Would it have been possible? Why? क्योंकि परचेज ही इतना बड़ा है, तो सेल्स could have been इतना छोटा पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना बड़ा कलेक्शन होगा तभी इधर अभी आपको क्या मिलेगा? टू सेल्स। Is this clear? That is your sales. So normally you get what? Normally इसका डिफरेंस क्या रहेगा? कैश सेल्स। आपका सोच बराबर है, कैश सेल्स भी ले सकते हैं, बट इस समय नहीं ले सकते कैश सेल। क्यों? ऑल सेल्स एंड परचेज आर ऑन क्रेडिट बेस। तो फिर कहां से आया पैसा? डेटर। सो कैश में टू डेटर, डेटर में बाय कैश। अब ढूंढो यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपको, जो टोटल कितना आ रहा है डेटर का? 10,38,450। 10,38,450 और ये 959,750। ये सेल्स कौन सा सेल्स हुआ? क्रेडिट सेल। 959,750 ट्रेडिंग क्रेडिट में डालो, इसको पुश इट इन द आउटर कॉलम। 958,550 स्टॉक कितना था? 1,90,000। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 4। अभी तो नॉर्मल है, बैलेंस हो गया। 449900। जीपी एनीवन? 588,650। 588,650 बाय जीपी 588,650। अभी गो फॉर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज हाउ मच? टोटल पहले बता दो। 5,91,350। हेलो, 591,350. Net profit anyone? 2. चलो guys, quick. 257,700 आया, बराबर है 257,700। प्लीज चेक। इधर कितना आ रहा है? 180, 275, 290,000, 2,90,200 आ रहा है। कैपिटल सी अपने को 2,90,200 आया। Is that right? 2,38,200 I think is the capital, and outer column how much you're getting? 5,13,100 and tally is on 7,77,300। बाकी तो चिंदी है। बैंक क्लोजर में सबसे पहला पूरा एसेट चेक कर लो आप। 7,77,300 इट शुड टैली। 300 का है। हाँ
777 पे टैली होना चाहिए। इतना बड़ा आया तो सीधा 15 या 20 मार्क का पूछ सकते हैं, बट आई डाउट इतना बड़ा आया, इसमें कट शॉर्ट करके दे माइट आस्क, बट इट कैन कम, इट इज फ्रॉम मॉड्यूल। सो लिसन, आ रहा है 777-300। अब सुनो ध्यान से, सबसे मेन चीज ये था, सबसे पहला क्या, बीपीबीआर, वो कोई भी ऑर्डर में करो चलेगा। बीपीबीआर के बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट के डेटर में मत जाओ, सीधा सेल मिलेगा आपको, बट वो सेल सही है कि गलत है? इतना छोटा सेल पॉसिबल, इधर परचेज है इतना 4.5 लाख का, तो इधर 60,000 का सेल पॉसिबल नहीं है। सो वी वेंट टू कैश बुक। बैंक का तो पता था अपने को ऑलरेडी, कैश का नॉर्मली इज व्हाट, कैश का डिफरेंस मैंने क्या बोला था आपको, या तो कैपिटल ड्राइंग्स या तो सेल परचेज, बराबर है? सुना? तो इधर कैपिटल या सेल हो सकता है, कैपिटल तो है, सेल कैश है, बट कैन इट बी कैश सेल्स ओवर हियर? व्हाई? बिकॉज़ ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट का सेल का पैसा आया, ये गया डेटर में, यहाँ से सेल, और फिर तो सब नॉर्मल हो रहा है। डाली is it tallying? Check. So last some number, हाँ, बट एक करेक्शन है, मैं बोलता हूँ भी आप करो, आप थोड़ा फास्ट करो, मैं तो एक्सप्लेन करके बोल रहा था आपको सब, खुद से करो। आधा घंटा, हाँ क्या है, हाफ एन आवर ही आपके पास। सब नंबर 21 खुद से करो, सब नंबर 21, get it on your own, sub number 21. Sorry. चलो guys, 21st sum खुद से करो फटाफट। मैं आपको बोलता हूँ करेक्शन, प्लीज मेक अ करेक्शन। आपका जो बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, प्लीज मेक इट 45,000, 25 का मेक इट 45। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में 45 और 60, ओपनिंग इज 45, क्लोजिंग इज 60, यू गॉट इट? प्लीज डू इट। क्लोजिंग वही है 16,000, खाली ओपनिंग 25 का 45 कर दो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बीआर 25 का 45। लास्ट सम फॉर द चैप्टर, आराम से करो, हाई मत करो, आधा घंटा आपके पास, slowly and gradually finish it up. Okay, half an hour you are having, half an hour 40 minutes जितना लगता है लोग, इज्जत से करो। इसको पॉज कर सकते हैं आप, तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, तो बैटरी खाएगा क्या पॉज में? ये पॉज है, तो ये क्या है? नीचे वाला फोटो है, तो नीचे वाला पॉज है,
ये ना